See, in today's lecture, we'll be dealing with Durkheim's theory of suicide. हम इस लेक्चर को ब्रॉडली 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, राइट, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. फर्स्टली विल बी टेकिंग अ लुक इनटू what are the prominent factors or reasons as to why Durkheim was interested in giving a sociological theory of suicide. Right, he gave around 3 to 4 reasons as to why he was particularly interested in studying suicide. Second section would be to determine what is the definition of suicide. How would you be defining suicide? और सुसाइड को जैसे देखा जाता था, राइट, कॉमन सेंस और साइकोलॉजी में सुसाइड वाज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट एक्ट, राइट. इट वाज अ प्राइवेट एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट डिपेंडेड ऑन द साइकिक predisposition or mental health or mental condition of an individual, right, whether he was suffering from anxiety or depression or not, or he was not able to successfully manage the challenges that life is throwing, right. Life is manifesting various challenges in an individual life. So whether he was mentally strong enough to able to respond to those challenges or not, right, that is how psychology was studying suicide. So second reason was that he wanted to give a definition of sociology, a definition of suicide or a perspective of suicide, especially dealing it from a sociological point of view using sociological imagination, right. So that is how he came up with the definition of suicide after going through lots and lots of empirical data. He studied around 26,000 cases of suicide from 1830 to 1870. During those 40 years, in those 40 years, he studied around 26,000 cases of suicide. So he was very much empirical in his approach, right, data driven in his approach, fact oriented in his approach. So here he will be linking theory and research. The third section would be, once we have defined suicide, what is suicide, right, how is Durkheim defining suicide? After that, he classifies the type of suicide, right. So he emphasized that suicide can be typified into 4 main categories, right. So one is anomic suicide, other is altruistic suicide, fatalistic suicide and egoistic suicide, right. And lastly, in the fourth section, we'll be taking a look into the criticism of the Durkheim's theory of suicide. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Durkheim's theory of suicide. जो Durkheim ने he wrote a book, right. He wrote a book called La Suicide, right. This is a French term, La Suicide. And this was Durkheim's third book. The first major book or the first major topic that he was interested in, he wrote it in 1893, right. Division of labor. We have already studied about division of labor. After that, in 1895, he published rules of sociological method. वहाँ पे वो बात करते हैं कि सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, उसका स्कोप क्या होना चाहिए, राइट. आपको टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी. नाउ सिंस ही वाज द मेन और रियल फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी, इंस्टीट्यूशनलाइज किया इन्होंने सोशोलॉजी, और सोशोलॉजी वाज first pursued as a kind of an academic discipline during his times, right. तो इनको ग्रैंडफादर भी ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है. सो वहाँ पे वो देते हैं कि किस टाइप की मेथडोलॉजी फॉलो करनी चाहिए सोशियोलॉजिस्ट को और सोशल साइंटिस्ट को, राइट, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में. एंड ऑल्सो ही डिफाइंस व्हाट इज सोशियोलॉजी. ही से सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, राइट. हम सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर विल बी कवरिंग रिलीजन. उसके बाद विल बी टेकिंग अ लुक इनटू social facts. The third book that he published after rules of sociological method is this book, La Suicide, and finally he'll be writing about religion, right, elementary forms of religious life. That will be his fourth book. So this was his third book, La Suicide. This was published in 1897. I mean, this is not relevant
बट हम एक क्रोनोलॉजी ट्रेस करेंगे, वहाँ पे ओवरऑल एक पिक्चर इमर्ज होके आएगी. सो दिस काइंड ऑफ टाइम लाइन बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. नाउ द थिंग इज, व्हाई इज ही राइटिंग अबाउट सुसाइड? तो इसके 3-4 राइट, फर्स्ट सेक्शन वी शुड बी डीलिंग विद कि व्हाट आर द रीजंस, प्रोमिनेंट फैक्टर्स एज टू व्हाई ही इज focused or concerned about, why did he choose suicide, right, suicide as a topic of sociological analysis. So now Durkheim, this book he wrote, what was the main reason behind it? See, firstly he wanted to show, prove or demonstrate राइट. वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि सोशियोलॉजी को कैसे परस्यू करना चाहिए, राइट. सोशियोलॉजी को कैसे परस्यू क्या करना चाहिए एक सोशियोलॉजिस्ट को, राइट. तो वो यहां पे सुसाइड में he wanted to demonstrate the utility of following a positivistic method, right, positivism. कि पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्टिक मेथड को हम सोशियोलॉजी में यूज कैसे करेंगे, राइट. तो वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे और इसकी यूटिलिटी को भी प्रूव और शोकेस करना चाहते थे. एंड दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट सुसाइड, राइट. द वे इन विच ही इज कंडक्टिंग हिज रिसर्च, राइट, थ्रू दैट अप्रोच ही इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द यूटिलिटी ऑफ पॉजिटिविज्म और प्रूव द यूटिलिटी ऑफ पॉजिटिविज्म. और एक ही वांटेड टू राइट एक काइंड ऑफ एक पाथ दिखाना चाहते थे बाकी जो सोशियोलॉजिस्ट इनको फॉलो करेंगे, बिकॉज सिंस इज द रियल फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में क्या होना चाहिए, क्या उसको पढ़ना चाहिए और उन टॉपिक्स को कैसे परस्यू करना चाहिए, राइट. वो ये दिखाना चाहते थे. ही वांटेड टू बी अ लीडर एंड वो एक पाथ दिखाना चाहते थे कि बाकी सोशियोलॉजिस्ट को कैसे करना चाहिए, राइट. इस पॉजिटिविस्टिक मेथड को कैसे यूज करेंगे, राइट. सो सुसाइड में आपको पॉजिटिविज्म के वेरियस फीचर्स और ये जो साइंटिफिक मेथड है जो यूज कर रहे हैं उसके वेरियस फीचर्स वो यूज करते हुए नजर आएंगे आपको इस बुक में, राइट. इन ये जो इनका मेजर सोशियोलॉजिकल वर्क है, राइट. सो पॉजिटिविज्म जब हमने पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कॉजल एनालिसिस, राइट, कॉज और इफेक्ट. अगर आपने नहीं पढ़ा है, आई विल एडवाइज यू टू रेफर टू बैक टू द लेक्चर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, बिकॉज अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, राइट. तो कॉज और इफेक्ट, नेचुरल साइंसेज में कॉज और इफेक्ट होता है, कॉजल एनालिसिस होता है, राइट. देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट, ठीक है. वाटर बनता है H2+O2 से मिलके ही आपका वाटर बनता है, राइट. सो H2+O2 इज अ कॉज और H2 इज एन इफेक्ट. हमने इसके बारे में पढ़ा भी था. तो ये प्रूव करेंगे कि कॉजल एनालिसिस इन्होंने यूज किया इसमें, राइट. तो वो देखेंगे अभी हम. फिर साथ साथ एम्पिरिसिज्म, राइट, एम्पिरिसिज्म हम ये देखेंगे कि ये जो वर्क है इसमें ही इज यूजिंग अ लॉट ऑफ डेटा, राइट, लॉट ऑफ फैक्ट्स. बहुत ज्यादा डेटा और फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है. और यहां से वी कुड से कि वो बस एक थ्योरी, एक चेयर में बैठे हुए आउट ऑफ हिज ओन माइंड ही इज नॉट जनरेटिंग अ थ्योरी, राइट. दैट इज अ टास्क ऑफ फिलोसफी, राइट. इंट्रोस्पेक्शन और अपने ही माइंड्स में से थियरीज और आइडियाज पुट करना, दैट इज मेनली अ टास्क ऑफ फिलोसफी, राइट. बट हियर थियरी is intimately connected with a rigorous research, right. So he is connecting theory and research.
यहां से क्या है, हम जैसे मैंने बताया आपको, बिटवीन 1830 टू 1870s, राइट, ये जो 40 साल का जो पीरियड है, इसमें he will be studying around 26,000 cases of suicide, राइट। तो आप देख सकते हो कि कितना रिगरस एनालिसिस और रिसर्च कर रहे हैं, दैट he is studying about 26,000 cases of suicide। उसमें क्या रीजन रहे होंगे, राइट, वेरियस फैक्टर्स रहे होंगे, डेटा, फैक्ट्स, राइट, लॉट ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च इज देयर, ठीक है। सो इट मीन्स दैट ही इज इम्पेरिकल इन नेचर, राइट, डेटा और फैक्ट ओरिएंटेड है, वो रिगरस रिसर्च कर रहे हैं। सो ही इज नॉट जस्ट concocting a theory out of his own mind, or he is not just an armchair kind of sociologist, right? तो यहां से क्या है, ये जो 26,000 केसेस होंगे, यहां पे लॉट्स ऑफ डेटा और फैक्ट्स विल बी देयर, और ये कहां से कलेक्ट करेंगे? सी, डुरखाइम क्या खुद क्या है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, राइट। हमने एम्पिरिसिज्म पढ़ा था कि एम्पिरिज्म इज ऑल अबाउट सेंसेस, it is all about observing things, and once you observe things you collect data about those things, you collect facts about those things, right। जब आप खुद ऑब्जर्व करते हो, दैट इज कॉल्ड एज, जो आप डेटा गैदर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा, राइट। नाउ आप रिलीजन में भी देखेंगे कि डुरखाइम विल बी रिलाइंग ऑन द स्टडीज ऑफ अनदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट देयर, उसमें पढ़ेंगे स्पेंसर और गिलनर के बारे में, who studied about Arunta tribe of Australia। now यहाँ पे भी he is also using about, ये क्या सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं, राइट, खुद का इनका रिसर्च नहीं है, दैट इज नॉट प्राइमरी डेटा, बट सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं। और ये जो डेटा है, ऑब्वियसली ये जो है, इतना ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो ये प्राइमरीली अवेलेबल तो नहीं होगा, तो ये जो सेकेंडरी डेटा है, ही इज गेटिंग दिस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लाइक ही इज गेटिंग दिस डेटा फ्रॉम पुलिस, राइट, पुलिस रिकॉर्ड्स होंगे सुसाइड के बारे में। अगर इंडिया में भी कोई सुसाइड कर लेता है तो सुसाइड इज अ क्रिमिनल एक्ट अंडर आईपीसी, राइट, तो वो पुलिस में रिकॉर्ड्स में जाएगा। प्लस पुलिस में क्या है, यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी या फिर वेरियस टीवी सीरीज देखी होंगी, तो देयर इज एन ऑफिशियल कॉल्ड एज कोरोनर, राइट। तो कोरोनर का जो मेन ड्यूटी होती है और मेन जॉब होती है, दैट इज टू असरटेन साइंटिफिकली व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, राइट, बेस्ड ऑन द डेटा और इनपुट और फोटोग्राफ्स दैट इज रिसर्च दैट इज रिसीविंग फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। द जॉब ऑफ कोरोनर इज टू असरटेन द कॉज ऑफ डेथ, राइट। तो कोरोनर का जो डेटा आएगा, जो पुलिस में जो कोरोनर के रिकॉर्ड्स होंगे, राइट, वहां से आपको क्या है, सुसाइड के बारे में काफी आपको ये जो 26,000 केसेस है ये मिलेंगे। प्लस हॉस्पिटल्स में भी रिकॉर्ड होंगे, राइट, सम रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन हॉस्पिटल्स एज वेल। तो यहाँ से ये जो सोर्सेज है, यहाँ से इज गेटिंग सेकेंडरी डेटा, और अराउंड 26,000, रफली 26,000 केसेस इन्होंने पढ़े, राइट। सो लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स आर देयर, रिगरस रिसर्च एनालिसिस ये करेंगे यहाँ पे। और दिस इज अ केस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंजेन्युइटी, राइट, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क वो कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा उनकी एलोबरेट रिसर्च है। दिस इज अ केस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंजेन्युइटी। ही स्टैटिस्टिकल जीनियस दिखने को मिलता है आपको, बिकॉज उस टाइम पे जैसे ही एनालाइज करेंगे, राइट, द टाइप ऑफ एनालिसिस विल बी पुटिंग, और यहाँ से जो वो इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स की फील्ड भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। So you could see the amount of hard work that is putting in, the kind of genius that Durkheim was, right? Even if the statistical field was not developed to that kind of extent, but still उसके बाद भी क्या है, he'll be studying these cases. So it's not that कि वो दिखा रहे हैं, यहाँ से रास्ता दिखा रहे हैं कि आर्मचेयर सोशोलॉजिस्ट नहीं बनना है आपको, राइट, बिकॉज ही इज द रियल फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी, राइट। तो ही इज शोइंग अ पाथ कि हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च, ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू यूज अ पॉजिटिविस्टिक मेथड, राइट। कॉजल एनालिसिस में भी आप देखोगे, सी यहाँ पे ये कॉजल एनालिसिस करते हैं, राइट। व्हाट आर द कॉजल फैक्टर्स? अगर हम सुसाइड एक देखते हैं, सुसाइड, लेट्स से सुसाइड क्यों हो रही है, राइट,
और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड विल बी डीलिंग विद दीज रीजंस व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट सुसाइड इन डिटेल लेटर ऑन, राइट. सो ये क्या मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं सुसाइड के पीछे, राइट. अगर हम जब बात भी कर रहे थे पॉजिटिविज्म के बारे में, you have to refer to the lectures again if you are not gone through positivism. See, these are independent variables, right? Statistics में independent variables होते हैं. और these independent variables they are the cause और इनका अफेक्ट होता है, right? This is affect is suicide. ठीक है. So this is dependent variable. तो हम देखेंगे कि ये जो इतने सारे केसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ से जब एनालिसिस करते हैं तो ये वेरियस वेरिएबल्स खोजते हैं, राइट. लिंकेज खोजते हैं कि क्या चीज़ सुसाइड को कोज कर रही है. इसमें देखेंगे कि फॉर एग्जांपल रिलीजन के बारे में भी देखते हैं ये कि रिलीजन क्या कोज हो सकता है सुसाइड का. एजुकेशन के बारे में भी देखते हैं ये, राइट. क्या एजुकेशन कोज हो सकता है सुसाइड का. इसके बाद इसके साथ वो अलग टाइप्स ऑफ वो पढ़ते हैं कि आपका सॉलिडैरिटी और यूनिटी और इंटीग्रेशन कितना सुसाइड सोसाइटी में, राइट. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स और वेरिएबल्स जो इतने सारा डेटा के बाद इमर्ज करके आते हैं, जो वो उनको एनालाइज करते हैं डेटा को. और यहाँ पे क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर्स, तो वी टॉक्ड अबाउट मल्टीवेरिएट एनालिसिस. तो वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी करते हैं सुसाइड में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे, रिलीजन में जो प्रोटेस्टेंट्स थे, वहां पे सुसाइड रेट ज्यादा था एज कंपेयर टू कैथोलिक्स, राइट. दीज आर द टू काइंड ऑफ सेक्ट्स और डिविजन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे और जो कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स में क्या है, सुसाइड रेट ज्यादा था. यहाँ पे लोग ज्यादा सुसाइड कर रहे थे एज कंपेयर टू कैथोलिक्स. तो यहाँ पे एक तो हो गया रिलीजन, राइट. रिलीजन आ जाता है. सिंस बोथ ऑफ दीज आर रिलीजन्स, तो क्या रीजन रहेगा, क्या वेरिएबल रहेगा. सी दिस इज नॉट अ वेरिएबल. रिलीजन इज नॉट द कॉज, देयर इज सम अंडरलाइंग कॉज, वो हम पढ़ेंगे कि क्या है. सिमिलरली प्रोटेस्टेंट्स आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर एजुकेटेड देन कैथोलिक्स. ये भी उन्होंने नोटिस किया. तो वहां से क्या हमने क्या देखा था, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में क्या करते हैं कि बाकी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, खाली इस एक को वेरी करते हैं, राइट. इनको कांस्टेंट रख दिया, इसको वेरी किया, तो इसका क्या अफेक्ट पड़ रहा है सुसाइड के रेट पे, वो बार बार क्या है. सो दिस इज एक्सपेरिमेंटेशन. सो ही विल बी यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन टू एन एक्सटेंट एज वेल, राइट. सो ऑल दीज मेथड ही इज यूजिंग, ठीक है. तो जब उन्होंने बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा और खाली एजुकेशन जो वेरिएबल है उसको आइसोलेट करके इसका इंपैक्ट बढ़ागी, अगर इसको चेंज करते हैं क्या, तो क्या सुसाइड रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, इसमें कोई इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है. तो ही केम टू ए कंक्लूजन कि एजुकेशन की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है. एजुकेशन इज नॉट द कॉज, राइट. इट इज नॉट द कॉज बिहाइंड द इफेक्ट ऑफ सुसाइड. तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस से आप क्या है, स्पूरियस, ये जो स्पूरियस कोरिलेशन बना था, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, राइट. तो अगर आपने पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड पढ़ा हो, तो दिस इज हाउ ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग कि ये ऐसे करना है, ठीक है. दिस इज हाउ यू शुड बी कंडक्टिंग रिसर्च. कॉजल एनालिसिस यूज करते हैं, इंपीरिसिज्म यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी यूज करते हैं ये. So all these features of sociological method or scientific method he will be using in his research. Comparative method कैसे various collectivities और groups को compare करते हैं, उनमें suicide rate. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंपेयर किया प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स को, तो प्रोटेस्टेंट्स में ज़्यादा है, राइट. सो ही इज यूजिंग अ कंपैरेटिव मेथड, ही इज डूइंग एन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द सुसाइड रेट ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, राइट. ठीक है. नाउ तो हमने अभी देखा कि रीजन एज टू व्हाई ही इज डूइंग दिस, राइट. सो द फर्स्ट, यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि he wanted to show or prove or demonstrate the utility of positivism and how to conduct a
sociological research, right? He established a linkage between theory and research, right? See, इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे कि सुसाइड को से पहले उन्होंने जो बुक लिखी थी, सी 1895 में हमने देखा था कि रोट द बुक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें ये डिफाइन करते हैं, क्योंकि वहां पे सोशियोलॉजी कंक्रीटाइज नहीं किया था एज ए डिसिप्लिन, राइट? Durkheim is the main reason behind institutionalization और concretization of sociology as an academic discipline, right? तो वो एक बेस से बिल्डअप कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी हमारे लिए काफी आसान है, कि सोशियोलॉजी ऑलरेडी इमर्ज कर चुकी है टू द करंट पोजीशन, राइट? एक करंट टाइम में एक सोशियोलॉजी का एक हमें दिख गया है कि सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, राइट? क्या कौन से मेथड यूज होते हैं। लेकिन आप डुर्कहाइम के पर्सपेक्टिव से देखोगे, अगर आप टाइम ट्रैवल करते हो और उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि वहां पे कोई सोशियोलॉजी की फील्ड नहीं थी, एंड ही इज ट्राइंग टू सेट अप अ मेजर एकेडमिक डिसिप्लिन फ्रॉम द वेरी ग्राउंड अप, राइट? तो नींव रख रहे हैं यहां पे, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो यहां पे रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में ये बुक थी, 1897 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में वो डिफाइन करते हैं व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, राइट? प्लस हाउ टू कंडक्ट, राइट? इट इज हाउ टू कंडक्ट दिस मेथड, how a sociologist should be following various rules. He should be following a particular methodology, the positivistic methodology, to conduct sociological research. And sociological research should not be an armchair kind of theory making, right? A sociologist should be dependent on observation, empiricism, experimentation, causal analysis, comparative method, generalization, right? All these kind of things he should be doing, because these are the characteristics of scientific method that was used in natural sciences at that point of time, right? उसका लिंकेज भी हमने देखा था। तो यहां से क्या है, इन्होंने बता तो दिया कि क्या करना है, लेकिन यहां से ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे करना है, राइट? हाउ टू डू दिस, राइट? यहां पे ये बोल रहे कि क्या करना है, व्हाट यू शुड बी डूइंग, राइट? और यहां से ये करके दिखा रहे हैं कि हाउ यू शुड बी डूइंग दिस, राइट? सो यहां पे ही विल बी डिफरेंशिएटिंग सोशियोलॉजी फ्रॉम फिलॉसफी, राइट? फिलॉसफी क्या करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलॉसफी? सी हमने देखा था कि फिलॉसफी डील्स इन एब्स्ट्रैक्ट थियराइजिंग, राइट? Whereas sociology is not dealing in abstract theorizing. Sociology is conducting sociological research, right? Fact-based, data-based research, empirical research. Whereas philosophy is dealing in abstract theorizing, and that is how sociology is different from philosophy, right? तो हमेशा ही उनका एक ये पर्पस रहेगा कि सोशियोलॉजी को क्या है, एज ए यूनिक डिसिप्लिन कैसे दिखाया जाए, राइट? सोशियोलॉजी का अपना खुद की यूटिलिटी, व्हाई शुड पीपल बी स्टडिंग सोशियोलॉजी, राइट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशियोलॉजी, राइट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी? बिकॉज जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स अप्रोच करेंगे, इट विल बी डिफरेंट एज टू हाउ सोशियोलॉजी विल बी अप्रोचिंग दिस टॉपिक्स, राइट? और ये देखने को मिलता है, राइट? डिवीजन ऑफ लेबर में हमने देखा था कि डिवीजन ऑफ लेबर को बेसिकली एक इकोनॉमिक कंसेप्ट और इकोनॉमिक फैक्ट माना जाता था, और हमने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट ओनली अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज नॉट ओनली अबाउट एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, राइट? दैट इज हाउ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ यूज्ड टू परसीव डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन ये बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस सॉलिडारिटी इन सोसाइटी, यूनिटी इन सोसाइटी। तो वो इसको एक सोशल फैक्ट की तरीके से देखते हैं, उसको बोलते हैं सोशल फैक्ट। सो ही इज डीलिंग विद दिस टॉपिक which was studied by classical economists, which was the predominantly the domain of classical economists। बोलते हैं कि ऐसे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस यूज किया जा सकता है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सेकंड, सुसाइड, राइट? सुसाइड को भी हम देखेंगे कि सुसाइड को अभी तक
क्या है? इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, और सुसाइड को एक साइकोलॉजिकल फैक्ट माना जाता था, राइट? नाउ दिस इज द सेकंड रीजन एज टू व्हाई ही स्टडिंग अबाउट सुसाइड, कि आप सुसाइड को अभी तक क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट मानते थे, और जो जनरल कॉमन सेंसिकल नोशन यही था, राइट? इसमें देखते थे कि, और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी यही था कि इट वाज द मेन डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, राइट? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मेंटल एप्टीट्यूड, राइट? मेंटल एप्टीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड और साइकिक predisposition of an individual, right? Psychic predisposition of an individual that he is not able to, he is not mentally strong, or resilient to counter or deal with various challenges of life, राइट? तो साइकोलॉजी ऐसे सुसाइड को क्या है, स्टडी करती थी, और कॉमन सेंस भी यही कहती थी लोगों की कि दिस इज सुसाइड इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, राइट? एंड सुसाइड यहां पे क्या है, सुसाइड was considered to be a very private or personal act, right? Considered to be a private or personal act of an individual, right? एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट माना जाता था सुसाइड को, ठीक है? एक इंडिविजुअलिस्टिक प्राइवेट पर्सनल एक्ट माना जाता था, और जब तक ये इंडिविजुअल रिवील नहीं करेगा आइदर थ्रू अ लेटर कि सुसाइड वो क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन एज टू व्हाई ही इज कमिटिंग और शी इज कमिटिंग सुसाइड, राइट? पीपल विल नेवर नो, राइट? उनका मेंटल डिस्पोजिशन क्या होगा, साइकिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होगा, स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, मेंटल फीलिंग्स क्या होंगी, राइट? इमोशंस क्या होंगे, राइट? व्हाट कुड बी इज मेंटल मेकअप और मेंटल यूनिवर्स, नो वन नोज, राइट? अनटिल एंड अनलेस वो एक लेटर छोड़ के जाते हैं जिसमें ही विल बी और शी विल बी रिवीलिंग द वेरियस रीजंस एज टू व्हाई ही और शी इज कमिटिंग सुसाइड. इवन इन दैट पर्टिकुलर लेटर, राइट, इन दैट 1 पेज और 2 पेज और इवन 3 पेज लेटर, आप उसका एक मेंटल यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? उसके पोजिशन में जाके आप नहीं कर सकते हैं कि व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग, राइट? व्हाट इज साइकिक स्टेट ऑफ माइंड and why that person took such a drastic decision to end his own life, right? So साइकोलॉजी डील करती थी इन एस्पेक्ट्स के साथ, और सुसाइड एक कॉमन सेंस में भी और वैसे ही माना जाता था कि जो मेंटल, कहीं ना कुछ मेंटल इलनेस रही होगी, राइट? एंजाइटी, कुछ मेंटल इलनेस रही होगी, राइट? द पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ he might be in a state of anxiety or depression. I mean, this is the primary theory, right? A basic theory of suicide as given by psychologists, right? This is how psychologists view suicide. It was highly personal, it was highly private, highly individualistic act, right? So it had nothing to do with society. See, यही काम था दुर्खाइम का. He wanted to demonstrate, and he said suicide is driven by society, right? social structure कैसा होगा वो डिटरमाइन करता है सुसाइड का, राइट? विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल स्ट्रक्चर. यहाँ पे
and he says suicide is not just a private personal act, rather he says suicide is a social fact, right? ठीक है, इसके बारे में डील करते हैं अभी। सी अभी तक हमने देखा कि जो फर्स्ट परमानेंट रीजन था एज टू वाई Durkheim's main motive as to why is he pursuing this topic of suicide, right? वो हमने देखा कि he wanted to showcase, demonstrate or prove the utility of sociology as a scientific, positivistic and empirical discipline, right? So he wanted to nudge sociology in one particular direction, and he is showing this path to other sociologists as well, right? And from this conception of sociology, he is also trying to differentiate or to stand it apart or to delineate or to reduce the dominance of philosophy, so as to say, right? तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब वो बात करते हैं फिलोसफी की, राइट, फिलोसफी में वो क्या बोलते हैं कि फिलोसफी is a discipline which basically deals in abstract theorizing of concepts, right? It deals in abstract theorizing of concepts, right? It provides metaphysical and you could say speculative explanation of reality, right? Whereas sociology is not conjectural or not speculative in nature, right? He says sociology is based on use of positivism, right? Sociology links theory with concrete research, right? Links theory with concrete research. Sociology is not just based on mere metaphysical, speculative or conjectural or abstract theorizing, right? It deals in concrete research, and concrete research through data. It is data and facts oriented, and this research is thereby rigorous in nature, right? तो वो एक concrete explanation देती है reality की, and this is how sociology is more empirical, right, in nature. It is more, since it deals with data and facts, we could say it is more statistically intensive, right? Statistically intensive, right? It focus a lot on stats, cold facts, cold data, right? So here in sociology, positivism is there, and here the main concern is empiricism, experimentation, right? Causal analysis, और इसी के बेसिस पे क्या है, और कंपैरेटिव मेथड का भी यूज करते हैं, कंपैरेटिव मेथड और कंपैरेटिव एनालिसिस, और इसी के बेसिस पे क्या है, सोशियोलॉजी कम्स विद यूनिवर्सल सेट ऑफ लॉज, राइट? यूनिवर्सल सेट ऑफ लॉज और थियरीज, राइट? सेम केस आपका नेचुरल साइंसेज में भी होता है। वेयर एज फिलोसफी इज more based on speculation
abstract theorizing, it is more abstract in nature or general or vague in nature, right? और यहां पे मेन फोकस होता है लॉजिक एंड रीजन का, राइट? सी लॉजिक एंड रीजन इन द सेंस दैट कि यहां पे डेटा पे फोकस नहीं है, रादर लॉजिक, रीजन और रैशनैलिटी पे फोकस है, राइट? यहां पे फोकस है आइडियाज पे, राइट? लॉजिक और रीजन पे फोकस है. फॉर एग्जाम्पल लॉजिक और रीजन का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर सी इट इज रैशनल, इट इज नॉट जस्ट कि रैशनल नहीं है फिलोसफी, इट इज रैशनल. और रैशनैलिटी के बारे में बहुत सारे फिलोसफर्स बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीलियोलॉजी एक इसकी ब्रांच है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ स्मोक कमिंग आउट ऑफ माउंटेन्स, राइट? अगर ये स्मोक आ रही है माउंटेन्स में से, राइट? तो इसके पीछे वो क्या लॉजिक लगाएंगे कि ऑब्वियसली देयर मस्ट बी ए सम काइंड ऑफ फायर. नाउ दिस सीम्स टू बी अ वेरी परफेक्ट और प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन एंड सीम्स टू बी अ वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या करेंगे? दे विल गो टू द स्पॉट, दे विल गो टू द स्पॉट, राइट? दे विल इंडल्ज इन एम्पिरिसिज्म, दे विल ऑब्जर्व फायर, राइट? कितना एक्सटेंट है उस फायर का, उसके पीछे क्या रीजन दिख रहे हैं, राइट? डेटा कलेक्ट करेंगे, कितने फॉरेस्ट एरिया में आग लग चुकी है, राइट? फिर उसको रिसर्च करेंगे, राइट? सो इट इज मोर कंक्रीट, इट इज मोर abstract in nature and it is more concrete in nature. So all this kind of methodology is Durkheim using in his theory of suicide, right? And through this he is also trying to differentiate it from philosophical approach, because the methodology or the approach of philosophy and sociology are completely different from each other, right? तो एक कार्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशियोलॉजी एक नया एकेडमिक डिसिप्लिन, उसकी खुद की एक यूटिलिटी होगी. सी अब हम जो सेकंड रीजन था हम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो हमने देखा था कि सुसाइड को एक साइकोलॉजिकल फैक्ट माना जाता था, राइट? और सुसाइड एज ए अगर अफेक्ट है, राइट? सुसाइड एक अफेक्ट है, तो इसके पीछे के जो कॉजेज होते थे उनको साइकोलॉजिकल कॉजेज माना जाता था, राइट? हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा, राइट? साइकोलॉजिकल कॉजेज रहे होंगे. और सुसाइड को मेनली एक्सप्लेन किया जाता था फ्रॉम एन इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? individualistic point of view, right? Suicide was considered to be as very private, personal or individualistic act. Right? एक इंडिविजुअल सुसाइड क्यों कमिट कर रहा है ये डिपेंड करेगा व्हाई इज अनदर इंडिविजुअल इज कमिटिंग सुसाइड. सो इट इज अ वेरी प्राइवेट एक्ट और पर्सनल एक्ट एंड इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इट इज काइंड ऑफ एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, राइट? दिस इज हाउ सुसाइड वाज स्टडीड. और कॉमन सेंस भी इसी को ऐसे ही परसीव करती थी. और उसके पीछे क्या है? साइकोलॉजिकल कॉजेज का जो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसी का डोमिनेशन था कि वाई पीपल आर कमिटिंग सुसाइड. और हमने इसमें देखा कि ये क्या बोलते हैं कि साइकिक प्रीडिस्पोजिशन कैसी होगी इंडिविजुअल की, राइट? साइकिक स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, राइट? उसका एक मेंटल मेकअप, उस टाइम पे मेंटल मेकअप और मेंटल यूनिवर्स कैसा रहा होगा, राइट? उस पे डिपेंड करता है कि वेदर अ पर्सनल इंडिविजुअल विल बी कमिटिंग सुसाइड और नॉट. नाउ यही बोलते हैं कि दोज इंडिविजुअल्स हु आर मेंटली इल
right, whose state of mind is not good, who are mentally ill or who are mentally weak, or who are not, इसका काउंटर पार्ट बोल सकते हैं, who are not mentally strong enough, who are not mentally resilient, right, who are not mentally resilient, right, they would not be able to counter or manage various challenges of life, right. लाइफ क्या है, काफ़ी चैलेंज होती है लाइफ में, और उसमें बहुत सारी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स मिलेंगे, राइट. देयर विल बी सोरोज, देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट्स, right. So life is very challenging. We have lot of expectations from other people as well as from ourselves. We set very ambitious goals, and when there is a gap between your desires and expectations, right, and if you are not mentally strong enough to come back from these failures, right, or failures could be understood or construed in any sense whatsoever. Failure would be any gap between desire and expectation of an individual that will be considered as a failure, whether it is a very big goal or very small desire, right. So he says ki life is very challenging. This is what psychologists say. Life is very challenging. There are various failures, sorrows and disappointments in life. This is what Buddha said, right. That is the gap between desires and expectations, and that is why the people who are not mentally resilient or mentally strong enough, right, who are not mentally strong enough, they won't be able to deal with these challenges of life, and ultimately they take a very drastic action, right. So life becomes very burdensome. Life becomes very burdensome. एक burden बन जाता है life, right. And people who are not able to shoulder this burden, right, they commit suicide. तो साइकोलॉजी कैसे स्टडी करती थी कि यू हैव टू लुक इनटू द मेंटल यूनिवर्स, यू हैव टू गो इनटू द माइंड ऑफ दैट पर्सन, और उसका मेंटल यूनिवर्स और मेंटल मेकअप क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये चैलेंजेस तो दूसरे इंडिविजुअल्स के पास भी आएंगे, राइट. Why is this particular individual committing suicide and not others, right. So this was kind of explanation that was given by psychologist. Now Durkheim is refuting this, right. Durkheim is refuting this psychologist point of view, psychologist's perspective और पॉइंट ऑफ व्यू. और डुरखाइम क्या बोलते हैं, सी हम 3-4 थियरीज पढ़ेंगे कि डुरखाइम कैसे कैसे रिफ्यूट करते हैं. इमिटेशन थियरी को रिफ्यूट करते हैं, राइट, कल्चरल और क्लाइमेटिक थियरी को रिफ्यूट करते हैं. सो दिस ये क्या, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस थियरी अगेन, राइट. सो दिस सेकंड रीजन that is one of the theories that he refuted, the psychological theory of suicide. Along with this psychological theory, he also refuted various other theories that were there, जो कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स किया थे. अलग अलग थियरी उन्होंने propound की थी कि वाई पीपल आर कमिटिंग सुसाइड. उसमें कुछ हेरिडिटरी थियरी ऑफ सुसाइड थी, राइट, रेस थियरी, क्लाइमेटिक थियरी ऑफ सुसाइड थी, और सबसे एक जो मोस्ट चैलेंजिंग थियरी ऑफ सुसाइड थी, जो काफ़ी चैलेंज पोज कर रही थी to Durkheim's concept of suicide or Durkheim's theory of suicide, that was Gabriel Tart's imitation theory of suicide. So we'll be looking into all those theories in a very brief or concise manner. तो उसमें जो this is the psychological theory, so I'll not be explaining this again, right. So this is the psychological theory. So he is refuting psychological theory of suicide. He's rejecting psychological perspective or psychological point of view of suicide, which considered suicide to be a very psychological effect, and this goes against common sense as well, right. So he is refuting the commonsensical notion as well, and I'll advise you to link this
in sociology and common sense, right? To link this in the relation between sociology and psychology, right? These are two different topics that are there in paper 1. So you could take these examples and you could mention these examples in those topics as well, right? Now see, now he is refuting psychologists or their perspective or point of view, right? And he says suicide is a social fact. सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट. और इसके पीछे वो क्या रीजन देते हैं? सी ही सेज कि एक इंडिविजुअल जो है, एन इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, राइट? एक इंडिविजुअल वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है, रादर he is an integral part of the overarching society, right? वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इंडिविजुअल क्या है? एक इंडिविजुअल क्या है? अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है. ही इज नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग इन अ वैक्यूम, ही इज नॉट just existing in isolation, right? He is also an integral part of an overarching society. अब वो ये बोलते हैं कि ये जो सोसाइटी है इसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट? इस सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट? सोसाइटी ग्रुप और कोई भी कलेक्टिविटी, राइट? हम क्या है, रिलीजन और अलग अलग टाइप की कलेक्टिविटीज के आपस में कंपेयर करेंगे, फैमिलीज, सोसाइटीज, राइट? तो इसका क्या है, एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर होगा, राइट? हाउ इज दिस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड? स्ट्रक्चर्ड? हाउ इज दिस सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड? और हाउ इज दिस सोसाइटी पैटर्न्ड, राइट? सो दिस इंडिविजुअल इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. और ये बोलते हैं कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ये क्या है, इस पे क्या है, इंडिविजुअल पे क्या है, एक कंस्ट्रेंट डालेगा, राइट? एक फोर्स एक्ट होगा इस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, राइट? वो अभी जस्ट देखते हैं. तो बोलते हैं ये जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, अब डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर होंगे. सी, अलग अलग ग्रुप्स का डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा. हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड, हाउ इज इट इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ इट इज पैटर्न, राइट? और ये जो कलेक्टिविटी है, राइट? एक रिलीजन, फॉर एग्जांपल प्रोटेस्टेंटिज्म इज अ कलेक्टिविटी, इट इज अ काइंड ऑफ अ सोसाइटी, राइट? इट इज हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. और जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज और उसका एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उस कलेक्टिविटी का, उसमें से क्या होगा, अपना डिफरेंट कलेक्टिविटीज का डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, राइट? डिफरेंट कलेक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ डिफरेंट मैनर. सो डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट कलेक्टिविटीज और डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट? देयर स्ट्रक्चर्स आर नॉट द सेम, दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट, राइट? सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या ये बोलेंगे, एंड एन इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ दिस social structure or this group identity or this collective identity or this societal identity, right? It could be anything, right? It could be caste, it could be gender, any kind of collectivity that could be manifest. It could be religion based, right? It could be ethnicity based, it could be race based, right? Now he says कि ये जो social structure है इसमें से क्या है, emanate और radiate होते हैं, right? Now और ये जो social structure है ये produce करता है, राइट? इस सोशल स्ट्रक्चर में से क्या प्रोड्यूस होते हैं? ही सेज इस सोशल स्ट्रक्चर में से प्रोड्यूस होते हैं सुइसिडोजेनिक, राइट? जेनेसिस और सुसाइड कॉजिंग, राइट? जेनेसिस ऑफ सुसाइड और सुसाइड कॉजिंग. ही सेज कि यहां से सुइसिडोजेनिक फोर्सेस का इमर्जेंस होता है, दे प्रोड्यूस, और इनका जो रेडिएट करते हैं इस स्ट्रक्चर में से, ये प्रोड्यूस करता है इन फोर्सेस को, राइट? सो दिस फोर्सेस, इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दिस फोर्सेस दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन दिस सोशल स्ट्रक्चर, राइट? इसको ये बोलते हैं सुइसिडोजेनिक करंट्स.
और सुइसिडोजेनिक इम्पल्सिस, राइट। ये सोशल स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करता है। जस्ट लाइक अ करंट, राइट, विंड का जो करंट है वो फ्लो करता है एनवायरमेंट में से और आपका जो वेदर है उसमें और सराउंडिंग्स में से, तो जस्ट लाइक दीज, ये जो सोशल स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है इन करंट्स और फोर्सेस का, these currents are flowing throughout the society, right? These forces, they pervade throughout this given social structure or pervade throughout this society, right? Now these are non-visible, right? These are non-visible. Obviously these are not visible, and इनको वो बोलते हैं these are social facts. These are social facts, right? Social facts भी दो टाइप के होते हैं, material which are visible and some of them are invisible, right? These are known as non-material social fact, right? These are non-material invisible social facts, right? So these currents are flowing through the society, and individual is not existing in a vacuum. He is a part of this broader society, and these forces, right? These forces act on the individual. These forces act on the individual, right? So social fact क्या होता है? Social fact क्या है? ये जो forces हैं, these are external to the individual, right? ये लाई कर रहे हैं सोसाइटी में, these are external to the individual, right? फ्लो कर रहे हैं, और सोशल फैक्ट की तरह ही सोशल फैक्ट की दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच विल बी डीलिंग विद। दे आर कोअर्सिव और दे एक्सरसाइज कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल, राइट? दे एक्सरसाइज सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल. These social forces, these suicidogenic currents are exercising some sort of constraint or some sort of force, right? Force. These forces are acting on an individual. They are exercising some sort of constraint on an individual, and these forces, they will be pushing these individuals towards suicide, right? So suicide is not a psychological fact, right? Rather it is driven by a particular social structure. अब ये social structure कैसा होगा ये डिपेंड करता है, राइट? तो डिफरेंट, वो बोलते हैं डिफरेंट सोसाइटीज का, डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. सम सोशल स्ट्रक्चर्स आर कंड्यूसिव फॉर द ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ सुइसाइडोजेनिक फोर्सेस, करंट्स और इंपल्सेस. तो जिन सोशल स्ट्रक्चर का, जिनका ऑर्गेनाइजेशन, जिनका स्ट्रक्चर और पैटर्न ऐसा होगा जिन सोसाइटीज का, जिसमें से ये जो करंट्स हैं ये ज्यादा रेडिएट करेंगे, तो वहां पे उन कलेक्टिविटीज में और उन ग्रुप्स में क्या है, और उन सोसाइटीज में क्या है, सुसाइड रेट ज्यादा होगा. Whereas some other societies or some other groups are organized in such a manner, right? जहां पे क्या है, social forces ये जो emerge करेंगे, they will be lesser in strength, right? They will be lesser in quantum. वहां पे वो ज्यादा जनरेट नहीं होंगे, वो ज्यादा कम एक्ट करेंगे इंडिविजुअल्स पे, राइट? तो उनका जो फोर्स होगा वो कम होगा, राइट? वो जो करंट्स है वो कम होंगे, तो वो उतना एक्ट नहीं करेंगे इंडिविजुअल पे, और उन सोशल स्ट्रक्चर्स में क्या है, सुसाइड रेट कम होगा, राइट? तो ये बोलते हैं दैट इज हाउ दिस इज अ सोशल फैक्ट, राइट? एक चीज और देखते हैं, सी द टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज दैट ही इज यूजिंग. अगेन आई विल बी taking you towards positivism. See type of terminology he is using, very kind of complex terminology, right? जैसे साइंस में यूज होती है, he is dealing about forces are used in science, so he is saying suicide. So he is deliberately using these kind of terminologies or inventing these kind of terminologies because हमने क्या बोला था, he wanted to construct sociology as a scientific discipline. तो उसमें क्या है, scientific terminologies भी होंगे. So this is a kind of a science, this is the science of man, right? तो suicidogenic forces क्या करते हैं, push और pull करते हैं. So they are pushing or pulling an individual towards suicide, right? Currents, just like a current, electric current flowing through the circuit,
flowing through the circuit, these are like suicidogenic currents that are flowing through the entire society. These are pervading throughout the entire society, and they are acting on the individuals. They are pushing or coercing or constraining an individual. They are pushing them towards suicide. They are pushing all the individuals of this social structure towards suicide, whereas some of them will be committing suicide, some of them will not be committing suicide, right? But overall suicide rate will be greater in this particular kind of collectivity. जो कि बाकी दूसरा जो सोशल स्ट्रक्चर होगा उसमें ये बोलते हैं, अदर कलेक्टिविटीज में सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज पैटर्न और स्ट्रक्चर होगा कि वहां पे क्या है, ये जो है इनकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है, ये कम रेडिएट और एमिनेट, दिस इज ऑल, दीज आर साइंटिफिक टर्म्स, राइट? एमिनेट, रेडिएट, इमर्ज, राइट? तो वहां पे कम होंगे और वहां पे सुसाइड रेट कम हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई ही सेइंग सुसाइड इज नॉट जस्ट अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, सुसाइड इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, रादर सुसाइड इज अ सोशल fact. It is shaped by social structure, right? Now we'll be looking into the third reason as to why Durkheim is concerned about coming up with this theory of suicide. We have talked about two reasons. Now we'll be taking into the third and the final reason. See, अब हम देखते हैं कि तीसरा रीजन क्या था कि Durkheim, why is he pursuing this theory of suicide? Why is it so important for him to study suicide, right? See, third reason was very simple. See, हमने देखा कि 1830 से 1870 के बीच में उन्होंने he studied about 26,000 cases of suicide. See, during this time, this was characterized by modern industrial society of France, right? Modern industrial society of France. और जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था डुरखाइम का, राइट, व्हेन वी स्टडीड अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, तो हमने देखा था कि फ्रांस में उस टाइम पे फ्रांस वाज सफरिंग फ्रॉम मॉरल डीजनरेशन, right? Moral crisis, lot of anomie was there in France, right? What is anomie? We'll be taking a look into it. That is, anomie is basically there were no rules, so as to say, right? It is a state of normlessness or rulelessness, right? No rules or no overarching norms are there. It was a state of chaos. Since there are no rules, there are chaos and uncertainty in France, right? Moral degeneration has happened, right? There is rampant or excessive individualism is there. People are morally degenerate. They are only concerned about their own self-interest because there are no overarching rules or norms to guide them, right? Rampant or excessive individualism, this is what we studied, right? यहाँ पे लार्ज स्केल हम देख रहे थे कि सोशल चेंजेस हो रहे थे, राइट? कलेक्टिविज्म वाज रिप्लेस्ड बाय इंडिविजुअल, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रहे थे, राइट? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। तो पूरी की जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस टाइम पे टर्बुलेंस था, राइट? तो ये बेसिक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंटेक्स्ट था यहाँ पे। और इस कंटेक्स्ट में डुरखाइम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सुसाइड रेट है ना वॉज पर्टिकुलरली हायर, सुसाइड रेट काफी हाई हो गया था इस टाइम के दौरान, वाज वेरी हाई, राइट? और सुसाइड वाज डेली रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स, राइट? एंड नॉट जस्ट दिस, his own friend, his own colleague who went by the name Victor, he also committed suicide, right? So as a French national, he was considered, he was tense, right? He was concerned about the state that the French society was in at that point of time. It was completely degenerating, right? Rapid social, economic, political change, suicide rate was very high, right? तो यहाँ पे जो उन्होंने कैटेगराइज किया था टू टाइप्स ऑफ सुसाइड,
राइट। तो यहाँ पे इस दौरान दोनों टाइप ऑफ सुसाइड्स का रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, दैट इज ईगोइस्टिक सुसाइड रेट बहुत हाई होगा यहाँ पे, राइट। इट वेंट बोंकर्स सो एज टू से, एज वेल एज एनोमिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड भी काफ़ी हाई होगा, राइट। और पर्टिकुलरली वाई यहाँ पे ये दोनों टाइप ऑफ सुसाइड क्यों हाई, विल बी टेकिंग अ लुक इनटू इट एज वेल, राइट। तो ही वाज नॉट dealing with suicide as a topic, not as an intellectual pursuit, right? He has intellectual reason behind it, right? To differentiate sociology and to prove or showcase its utility as well as the utility of scientific or a positivistic method in sociology. That was his intellectual pursuit, so as to differentiate sociology from philosophy, so as to differentiate sociology from psychology, right? That was his kind of an intellectual pursuit. But he was also considered it concerned about it as he was also from a French national point of view. He was a nationalist as well, right? He was a nationalist as well, or he was a great patriot, right? And he was particularly concerned about the state of French society and the rapid increase or the higher suicide rates during this period of time from this period of time, right? He was very concerned about it. It was daily reported in newspaper, in media. His own personal friend died, right? So he came up with this theory of it in 1897. See, not only this, अगर आप लिंक करोगे पर्सनल circumstances भी, not only just his close friend, later on in First World War, right? उससे पहले ये theory publish होगी, लेकिन आप लिंकेज देख सकते हो कहीं ना कहीं। उनका बेटा था आंड्रे, राइट ना। आंड्रे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंस्क्रिप्शन हुआ, राइट? दैट इज मैंडेटरी military service for the young French national that was there. It was mandatory military services that they have to render during the First World War, right? So his son, he sacrificed his life, right, for the sake of nation in during First World War. Now ये किस टाइप की सुसाइड हो गया हम पढ़ेंगे. This is an altruistic suicide, right? So not only intellectual but as a French national due to his own personal circumstances as well, right? He is concerned as to why he is writing about, that is his third main reason as to why he is pursuing the suicide theory, right? और हमने तीन देख लिया, तीन टाइप्स ऑफ सुसाइड, egoistic, anomic और altruistic. See, one more type of suicide that he'll be talking about is fatalistic suicide. फैटलिस्टिक सुसाइड को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, वो इट वाज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस और मच एक्सप्लेनेशन इन हिज थियरी। रादर उसको क्या है, एक फुट नोट में, राइट, एक फुट नोट में ही उसको क्या है सिमटा के रख दिया उन्होंने, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस और एम्फेसिस नहीं दी फैटलिस्टिक सुसाइड को। व्हाट इज फैटलिस्टिक सुसाइड, विल बी टेकिंग अ लुक इनटू इट, बिकॉज ये फैटलिस्टिक सुसाइड ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी एज फार एज फ्रेंच सोसाइटी वाज कंसर्न्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो particularly he will be focusing on egoistic and anomic suicide, right? These two kind of suicide. तो जो fatalistic suicide है, इनकी theory के हिसाब से it might not be important from a French societal point of view, लेकिन इसी टाइम पे आप देखोगे इस टाइम पे slavery, राइट, इससे पहले आपका 18th और 19th सेंचुरी में slavery was prevalent in अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। और स्लेव्स किस टाइप की सुसाइड करेंगे, दे विल बी कमिटिंग फैटलिस्टिक सुसाइड। सो इट वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। लेकिन बट उन्होंने अपनी थियरी में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसको बस एक फुट नोट में क्या है लिमिट करके रख दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, राइट, बिकॉज इस सोसाइटी के हिसाब से, राइट, दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल दिस फिनोमिनन, राइट, ही वॉन्ट्स टू make the society normal again, and he is particularly concerned about these two types of suicide, and that is why he came up with this theory of suicide, because sociology as a discipline should contribute something to the explanation of these phenomena, why are they occurring, right, and to give an explanation for them, and this explanation should be social in nature, right, they are driven by social facts. And once you have come up with an explanation, once you have analyzed the nature of the problem, then only you will be able to come up with solutions, and then only you will be able to counter these kind of social phenomena or social problems, right? So his sociology was not just intellectual in nature,
from a patriotic or national policy point of view, is also pursuing sociology, and also from a personal point of view. So from these three perspectives, he's trying to study suicide, and that is why he took suicide and studied suicide and came up with the theory of suicide in his book ल सुसाइड in 1897, राइट. और उसके बाद क्या है, जो कॉमन नोशंस थे सुसाइड के, दे वर कम्प्लीटली शैटर्ड, राइट. एक कम्प्लीटली न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव वाज गिवन अबाउट सुसाइड. और हम पढ़ेंगे भी, हम इंडियन सिनारियो के हिसाब से भी एनालाइज करेंगे, राइट. कोविड में काफ़ी लोगों ने सुसाइड की, राइट. सुशांत सिंह केस यू माइट हैव हर्ड अबाउट, राइट. So you could categorize this suicide in egoistic or anomic suicide too, right? Particularly anomic suicide or some sort of egoistic element will be there as well, right? These are not watertight kind of compartment. Farmer suicides in Indian context, right? So इनकी सुसाइड का जब ये जो सुसाइड थ्योरी इन्होंने दी, इसके बाद इनका काफ़ी एप्लीकेशंस हुए और मल्टीपल नॉट ओनली सोशोलॉजिस्ट बल्कि साइकोलॉजिस्ट भी इसको रेफर करते हैं, स्कॉलर्स भी रेफर करते हैं. सो दिस बिकम अ वेरी मेजर थियरी ऑफ सुसाइड एंड दैट. और इन्होंने शोकेस किया, इसे यूटिलिटी प्रोवाइड की. व्हाट इज द थियरी, यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ कमिंग अप विद द सोशोलॉजिकल डायमेंशन, सोशोलॉजिकल एनालिसिस, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और सोशोलॉजिकल कंसेप्चुअलाइजेशन और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सुसाइड, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है. और एक बार इन्होंने ये प्रूव कर दिया हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो एक जो डोमेन जो था, कोर डोमेन था साइकोलॉजी का, जो साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहिए था, राइट, उसके पीछे इन्होंने क्या सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया. और यहां से इन्होंने ये साबित किया कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी सोशोलॉजी, व्हाई शुड वी स्पेंड सो मच फंड्स to make it an academic discipline, to pursue it in a university, right, to make one separate department for sociology only. Why should these funds be spent, right? You have to give justifications of it. Why so many people should pursue this discipline? It was a completely new discipline at that point of time, right? Why should people focus their energies on sociology? Why should they be conducting sociological research? Because they have real practical benefits and it will be giving a very fresh perspective, right? So in next lecture we'll be talking about suicide rate. मैंने अभी डिसाइड किया, I talked about this suicidogenic forces. So there are two kind of suicidogenic forces, the force of regulation, integration, we'll be talking about them, right. Then we'll be talking about this 4 classifications of suicide, right, plus refutation of theories of, as well, right, in next 2 lectures, I guess, right. Around 1 hour lectures will be there, 2 more lectures will be there on suicide.